गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल कौशाम्बी स्टडी पॉइंट। पिछले वीडियो में हमने हाई स्कूल के बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड टॉपिक पर एक वीडियो दिया था जिसपे मैंने आप लोगों को ये बताया कि इंग्लिश सब्जेक्ट के किस टॉपिक से कितने नंबर का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है। आज हम लोग उसी को आगे बढ़ाते हुए, वैसे तो मैं जितने टॉपिक की चर्चा कल की थी सिलेबस में, जो भी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक था उसके लिए भी मैंने बताया था, और बाकी हर टॉपिक वाइज जैसा टॉपिक आप एग्ज़ाम में टॉपिक वाइज मैं हर लेसन की समरी दूंगा, उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगा और उन क्वेश्चंस के आंसर दूंगा, आंसर का वेल एक्सप्लेनेशन दूंगा। अच्छे तरीके से उन आंसर्स को मैं एक्सप्लेन भी करूंगा। आज हम लोग हाई स्कूल के प्रोज सेक्शन के पहले चैप्टर अ लेटर टू गॉड की बात करते हैं। अ लेटर टू गॉड मीन्स भगवान को पत्र। दिस लेसन हैज बीन रिटन बाय G.L. Fuent। In this story, it is said that faith can move mountains, but what we should put in our faith, we should find out the answer of this question in this story. There is a farmer named Lencho who had great faith in God, deep faith in God. This year his crop was very good and he was well satisfied to see his crop, but it needed a downpour or a light rain. But one day a huge mountain of clouds were approaching in the sky, and he was filled with satisfaction that perhaps he will get some water now. But soon the big raindrop began to fall, and after some time a strong wind began to blow, and hailstorm came there and destroyed his total crop. After the hailstorm stopped, he went with his family to his field and saw that his total crop was destroyed, and even there was no leaf on the plants. Although it was total loss, completely loss, but he and his family were not sorrowful because they knew that God is omnipotent and omnipresent, and he see everything what is in our conscience. Although Lencho was a hard-working farmer, but he also knew how to write. Next day he went to the post office, buy a writing pad and started to write a letter to God. And after finishing the letter, he posted it in the mailbox. Next day when the postman get that letter, he was too much surprised and went to show it to the head officer, a head postmaster. First of all, they all laughed to see that kind of letter, and as the postman said that in his life he has never been to deliver any letter at that address. But soon the postmaster decided to answer that question. But when he opened the letter, he found that to answer the question, it does not need goodwill or good feelings, but something else. Lencho wrote to God that God, my total crop has destroyed due to hailstorm, and I have only one hope from you. So please send 100 pesos so that I could sow my field again and live until the crop comes. After reading the letter,
the postmaster decided to help Lencho. He gave some part of his salary, and he also involved his all postal employees and other his friends to in this act of charity. And in this way they collected 70 pesos and put it into the post box and signed as a god. Next day Lencho went to the post office and asked if there was any letter for him. The postman himself handed him the letter, but when Lencho opened the letter and counted the money, he became annoyed. He became angry because there was less money as he had asked for. So he once again went to the post office, bought a writing pad and wrote to the guard that next time he should send the money not by post but direct to him because all the postal employees are bunch of crooks. That's the story. इस कहानी में लेंचो नाम का एक किसान है जो बहुत परिश्रमी है। वो एक घाटी में रहता है जहाँ उसका इकलौता घर है। इस साल उसकी फसल बहुत अच्छी थी और इस फसल को केवल एक चीज़ की ज़रूरत थी, हल्की सी बारिश या कोई बौछार आ जाए। यही सोच रहा था, तभी अचानक आसमान में बड़े विशाल बादल दिखाई देते हैं। लेंचो संतुष्ट हो जाता है, शायद कुछ पानी हमको मिलेगा। शीघ्र ही बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगती हैं और लेंचो इन बूंदों की तुलना सिल्वर के सिक्कों से करता है। लेकिन थोड़ी देर बाद तेज़ हवा चलने लगती है। तेज़ हवा के साथ ओले पड़ने लगते हैं और इस तरह से पूरी घाटी, पूरा खेत, बगीचे सब सफ़ेद नमक की चद्दर की तरह ढक गए। सफ़ेद ओले से जैसे कि नमक की चद्दर से ढक गए हों। जब तूफान चला गया, लेंचो और उसका परिवार खेत में जाते हैं, देखते हैं कि उनकी पूरी फसल नष्ट हो चुकी है। फिर भी पूरा परिवार बहुत ज़्यादा दुखी नहीं है, क्योंकि उन सब की ईश्वर पर बड़ी आस्था थी और वो जानते थे कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, जो कुछ भी हमारे मन में है वो सब देख रहा है। ऐसी उनकी आस्था थी। लेंचो पढ़ा लिखा था। अगले दिन वो पोस्ट ऑफिस जाता है, राइटिंग पैड लेता है और उसमें भगवान के नाम की एक चिट्ठी लिखना शुरू कर देता है। लिखता है कि हे ईश्वर, मेरी पूरी फसल ओले के कारण समाप्त हो गई है, इसलिए आप मुझे 100 सिक्के भेज दीजिए ताकि मैं अपनी फसल बो सकूं और जब तक फसल पुनः तैयार ना हो जाए मैं अपने परिवार का लालन पालन कर सकूं। इस पत्र को वो पत्र पेटिका में डालकर चला जाता है। अगले दिन जो पोस्टमैन है जब वो पत्र को पाता है और उसका पता देखता है तो हैरान हो जाता है और हंसते हुए पोस्ट मास्टर को जाकर दिखाता है। पोस्ट मास्टर भी पहले तो उसको पढ़कर हंसता है, लेकिन फिर सोचता है कि मैं इस स्थान की ईश्वर में जो आस्था है उसकी रक्षा करूंगा और इसका जवाब दूंगा। लेकिन जैसे ही उस पत्र को ओपन करता है वो पाता है कि इस पत्र के जवाब देने के लिए अच्छी भावनाओं और पेन और इंक की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि किसी और चीज़ की ज़रूरत थी, क्योंकि उसके माध्यम से लेंचो ने पैसे मांगे थे। उस ज़माने में 100 सिक्के जो मांगा था, 100 पैसेस मांगा था लेंचो, बड़ी बात थी। लेकिन फिर भी पोस्ट मास्टर ने कुछ अपने सैलरी का हिस्सा दिया, कुछ अपने पोस्टल एम्प्लॉयज़ जो उसके कर्मचारी थे उनसे लिया और अपने अन्य दोस्तों से भी इस दान के कार्य में, महान कार्य में सहयोग लेता है। लेकिन फिर भी वो 70 पैसे ही वो कलेक्ट कर पाते हैं और वो लिफाफे में रखकर लेंचो के नाम का पता लिख करके रख देते हैं। अगले दिन लेंचो आता है, पूछता कि क्या उसके नाम का कोई पत्र है। पोस्टमैन स्वयं उसको पत्र देता है, पोस्टमास्टर स्वयं हाथ में उसके पत्र देता है और जैसे ही लेंचो पत्र को ओपन करता, खोलता है, खोलने के बाद पैसा गिनता है तो क्रोधित हो जाता है और पुनः भगवान के नाम एक चिट्ठी लिखता है और कहता है, ईश्वर, अब की बार जब आप पैसा भेजिए तो भैया पोस्ट के माध्यम से मत भेजिएगा, क्योंकि ये सारे पोस्टल एम्प्लॉइज बंच ऑफ क्रूक्स, लुटेरों का समूह है। ये क्वेश्चन भी सार टाइप में इंपॉर्टेंट में है, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसकी चर्चा करूँगा। और इसी के साथ ये कहानी समाप्त हो जाती है। इस कहानी में हमको ये
देखने को मिलता है कि अगर इंसान ईश्वर में आस्था रखता है तो आस्था वो ताकत है जो बड़े से बड़े पर्वत को भी हिला सकता है। लेकिन ये निश्चित होना चाहिए कि हम आस्था किस पर रखते हैं। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग। अगले वीडियो में आपको इस लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, उनके आंसर और वेल एक्सप्लेनेशन, अच्छी तरह से उनका विश्लेषण भी मैं हिंदी में करके दूंगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वाचिंग।